स्टूडेंट्स yesterday, जहां पर उन्होंने मैथमेटिक्स को कोड में लाया, फिर वहां पर वो हार गया था जिसका परसेप्शन ये था कि मैथमेटिक्स के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं। हराया किसने? साइंस ने। हराया किसने? टेक्नोलॉजी। हराया किसने? एप्लीकेशन पार्ट ने। So I appreciate and I congratulate the students of our first semester students. भी कुछ ही महीने हमारे साथ हो रहे थे। तो उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया, no discipline can work, can survive without mathematics. So with this intention, once I was training the structure of this math test, then I have decided why not to keep a small sort of discussion so that we can listen our teachers what kind of problems they are facing. तो उनसे हम सुनेंगे, हम कोशिश करेंगे क्या क्या मसाइल है, फिर हम अपने यहाँ से जवाब देंगे. Please, it is open for the questions. If you have any questions, for example, we have teachers who are working in different schools, students जो वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वहां से जब हम सुनेंगे उसके बाद हम यहाँ से जवाब देंगे. Please, to from the participant side. Mostly our first semester students. सर इससे डरते हैं, रोज रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं इसके बारे में. Regarding the downfall of this practice subject in our times, in my opinion, all the stakeholders are responsible for it. It may be student, his parent, or the student himself, or parent, or the government. I think all are responsible, and the teacher is too responsible for it. Because in most of the cases, I have seen that there are so many schools where a teacher from other disciplines is teaching mathematics. And if being a teacher, other than the teachers here, if I ask all these students, well, some teacher divides up, no one can answer. What is the condition for that? And this is the basics. Similarly, when the teacher from other discipline comes to class and he uses the classical feeling, he is not from the subject and starts speaking, how he knows when any teacher divides the teacher, what the condition, then you are not knowing it, because you are from the same subject. And this is the main reason, in my opinion, that there should be trained teachers who are teaching mathematics in our classes, in high secondary schools or secondary schools. And parents are also responsible for it, because when the parents were themselves students, they were normally they were feeling that mathematics is very hard subject, and they are not giving chance to their student, their child, to opt this mathematics. Because they have some different intention of the subject, perception of the subject. So this is also the reason. And the third reason is because government is also not taking its efforts to promote this subject. Because there are no government jobs. In other schools there are jobs, but in mathematics, I think what I have seen that they are suffering. Because there are so many postdocs, PhD students here, and they are suffering. They are not earning their livelihoods. This is my opinion. So we should address this. Yes. I think we are audible without this mic because we have certain difficulties. You can your opinion because he can introduce himself and later on he can just be precise because we don't have much time. Presently, I'm working as a senior lecturer in mathematics at Higher Secondary School, Halls, Pulwama. And I'm Arshad Hassan Mani. पिछले 2 साल से जो प्रोग्राम्स यहाँ कंडक्ट हो रहे हैं रिगार्डिंग दिस मैथ फोबिया, इनफैक्ट इसकी पॉपुलराइजेशन, तो मेरे ख्याल में बहुत फर्क आ चुका है. एंड मुख्तार साहब ने राइटली सेड दैट ये फोबिया नहीं है, एक्चुअली अब नीड है, अब जरूरत है ज्यादा. अगर हम 20 साल 15 साल पहले की बात करें, उस टाइम का जमाना, उस टाइम का टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा दौर नहीं था. आउटसाइड जे था वहां, मगर यहाँ पर थोड़ा लेट ही आ गए, लोग ज्यादा सोचने लगे. तो बिकॉज ऑफ दैट
कि मैथ्स की जरूरियात ज़्यादा आ गई, मतलब हमें ज़्यादा सोचने लगे कि हम मैथ कैसे पढ़ें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, अदरवाइज तो डिक्लाइन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। मगर जो मैंने एज ए टीचर ऑब्जर्व किया है, एलिमेंट्री लेवल पे आजकल मैथमेटिक्स वीक है, ये मानिए। एलिमेंट्री लेवल के जो टीचर्स हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, या तो वो मैथमेटिक्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स मैथमेटिक्स नोइंग उतने नहीं, उतने जानने वाले नहीं। दूसरी बात ये भी है कि अगर जानने वाले भी हैं, कट शॉर्ट करते हैं, किसी तरीके से चीजों को खत्म करते हैं, मतलब प्रॉब्लम उनके सामने आती है विदाउट एक्सप्लेनिंग दैट, उसको एक्टिविटी बेस्ड बनाने के बगैर ही शॉर्टकट में प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। बच्चे को किसी भी तरीके से ना मोटिवेट करते हैं कि हमने आपको ये प्रॉब्लम दिखाई। रिसेंटली मेरे कुछ टीचर्स से भी बात हुई है फ्रेंडली अप्रोच में, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है कि प्राइमरी लेवल पे, इवन कि सेकेंड, अगर हम मिडिल लेवल तक की बात करें, जस्टिस नहीं हो रहा है। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे ना, प्राइमरी लेवल तक की सिलेबस मैथमेटिक्स की बात करेंगे, बहुत अच्छा सिलेबस है, मैंने खुद भी देखा है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स मैथ्स की हैं, ऑपरेशन तो ये है प्लस माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्वेश्चन तो इसी पर है, मगर एक्टिविटी बेस्ड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है सिलेबस, मगर सर क्या कर रहा है, टीचर क्या कर रहा है उस लेवल पे, वो बच्चे को एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, उसको टाइम लगता है। वो एक्टिविटी दिखाने के बगैर ही बोर्ड पे एक्सरसाइज डायरेक्टली क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन यही आती है कि मुझे 2+3 दिखाना है, 5 है। मगर ये 2+3 एक फर्स्ट स्टैंडर्ड या जो केजी स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसको दिखाने के लिए एक अच्छी सी एक्टिविटी प्रेस्क्राइब की गई है बोर्ड टेक्स्ट बोर्ड जो बोर्ड ने दिया है, वो नहीं दिखाता है। ये मोस्टली टीचर से मेरी बात हुई है, और कहा उस्ताद टीचर से कहा भी है कि वो दे आर नोइंग मैथ्स, तो ये प्रॉब्लम हम फील कर रहे हैं। बाकी सर ने अभी बताया भी, मुख्तार सर ने, मैथमेटिक्स का ठीक ठाक बोला बाला है, ठीक ठाक तो होना चाहिए। जब तक ये होगा ना, तभी तो हमारा स्टेट रिसोर्स तो बनेगा। और दूसरी बात है, रिसर्च बहुत कम हो रहा है हमारे स्टेट में, सो फॉर दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न, बहुत कम हो रहा है। इसका रीजन यही है कि शॉर्टकट ही करते हैं ना, 12th क्वालिफाई करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, इंपॉर्टेंट वो भी है, तो रिसर्च फील्ड में कम ही जा रहे हैं। मगर अच्छा होता कि अगर इस फील्ड में भी ज्यादा चले जाते, तो इससे भी हमारी स्टेट रिसोर्स तो बन जाती। मैं इन द लॉन्ग रन सोचता हूं। मैंने अभी मेरे बच्चे ने बोला है रिसेंटली कि स्विट्जरलैंड जो स्टेट है, कंट्री है, वहां की पॉपुलेशन जो है वो है जितने इंडिया में इंजीनियर्स हैं, मगर स्विट्जरलैंड रिसोर्सफुल स्टेट है, बहुत ही एडवांस स्टेट है, क्योंकि वहां पर रिसर्च एवेन्यूज बहुत ज्यादा है, और मैथमेटिक्स अच्छे खासे लोग वहां पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर here is some feedback we are collecting from the participants. Please introduce yourself. Assalamu alaikum. Good afternoon to everyone. I am participating in this program as a school teacher. In fact, I am also an alumnus of the Department of Mathematics. To be frank enough with you, जब मैं कल यहाँ पे आ गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए when I entered the department जहाँ पे हम पढ़ते थे। सभी यहाँ पे टोपोलॉजी की बात करते हैं। टोपोलॉजी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी जब हम प्रीवियस में थे या फिर फाइनल एग्जाम फाइनल ईयर में आ गए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ
सबके चहेते टीचर गुलजार साहब ही रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। पर मेरे साथ, इनके साथ साथ जो सभी टीचर्स थे, मेरे फेवरेट रहे हैं प्रोफेसर सोफी साहब। उसकी ये एक वजह की थी कि जो भी वो पढ़ाते थे, हालांकि वो सर के ऊपर ही जाता था क्योंकि शायद हमारी लेवल वो नहीं थी, लेकिन जो उनका अंदाज पढ़ाने का था वो मुझे इम्प्रेस बड़ा करता था। उनकी एक बात है जो मुझे अभी तक याद है, और अब मैं भी 15 साल से पढ़ाता हूँ, मैं ये क्लास में अक्सर कहता हूँ, क्योंकि हर एक टीचर का आपको जो पढ़ाने का स्टाइल है, द वे ही और शी वॉक्स इन द क्लास, द वे ही और शी ड्रेस इन द क्लास, वो कैसे बात करते थे। सोफी साहब की एक बात याद है कि वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू डू वेल। तो मैं हमेशा, आप कह सकते हैं, मैं ओबीडियंट नहीं रहा हूँ क्लासेस में, क्योंकि यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी हुआ करता था, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया है जब इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट यहाँ पे हुआ था। तो सोफी साहब ने कहा था कि वर्क स्टडी फॉर 25 आवर्स। तो हम कह रहे थे, हम सोच रहे हैं कि देयर आर ओनली 24 आवर्स, अगर वो दिन और रात हम पढ़ेंगे तो देयर आर ओनली 24 आवर्स। लेकिन फिर ज़्यादा उनके साथ बहस भी नहीं किया, क्योंकि जैसे गुलजार साहब ने कहा था कि उन दिनों ज़्यादा गैप होती थी टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान। लेकिन माशाल्लाह जो हमने कल से ऑब्जर्व किया, अब स्टूडेंट्स और फैकल्टी के दरमियान वो गैप कम हो रही है। तो आई एम कंग्रेचुलेटिंग एंड थैंकफुल टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर खांडे साहब एंड प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला मीर साहब फॉर दिस थिंग्स। ये सोफी साहब ने कहा था कि 25 आवर्स पढ़ो। जब ये बात आ गई समझ के, एज मच एज यू कैन स्टडी, जितना आप स्टडी कर सकते हो उतना आप कीजिए, अपने टाइम को मैक्सिमाइज कीजिए, अपने एफर्ट्स, इंशाल्लाह फ्रूट्स तो मिलते ही मिलते हैं। मैं आपको अपनी बात कहूँगा कि फिर मैं इनके जो डिस्कशन पर उस पर बात करेंगे। जब हम टूर्नामेंट में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे तो अजीज साहब आगे अपने अंदाज में, वो जब पढ़ाते थे हमें नंबर थ्योरी, वो देखते थे कि कितने पेजेस आप लिखोगे, कितना मैंने पढ़ाया, वो हमारी पूरा हो गया। पूरा कितना हो गया सिलेबस, वो पेजेस गिनते थे हमारे स्कूल। मैं सामने ही बैठता था सेकंड रो में, पहले गर्ल्स ही काम होती थी 5-6 थी, तो हम पीछे बैठे, वो मेरे पास तला कूता जो कुछ कह चुका सा गोड़ चुका सा एब्सेंट सर हम क्रिकेट। लेकिन आपको मैं अजीज साहब की एक बात कहूँगा, जब हम फाइनल्स के लिए हमने क्वालिफाई किया तो अजीज साहब पहले थे जिन्होंने हमें क्लास से उठाया और हमें एनकरेज किया, वो बड़ी बात थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरमाए। अब मैं इस अर्शिद साहब की बात को एक ऐड करूँगा, बल्कि हम कह रहे हैं एक्चुअली वी आर पासिंग द बक। अगर मैं हायर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो सेकेंडरी पे है, जो प्राइमरी पे है, उनको एफर्ट्स करने हैं, एंड जो कॉलेज लेवल पर है वो हम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, द बक शुड स्टॉप समवेयर। मसला ये है कि अगर हम प्राइमरी लेवल पर एज अ टीचर है तो हमें वहाँ पे अपने जॉब के साथ जस्टिफिकेशन करनी है, ऑनेस्ट रहना है। अगर हम हायर सेकेंडरी लेवल पर है, मुझे उस पर अपने टीचर के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने क्लासरूम में ऑनेस्ट रहना है। अगर आप कॉलेज लेवल पर है या यूनिवर्सिटी लेवल पर है, जहाँ पर भी आपको स्टूडेंट मिलेगा वहाँ पे आप एफर्ट्स कीजिए। कल के स्पीकर्स का सबका मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक टॉपिक जो था जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने चूज किया था कि स्कूल लेवल पर क्लासरूम सिचुएशन क्या होगी। बेसिकली मोटो ऑफ द प्रोग्राम यही है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस है, जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, ये कल के टीचर्स हैं, ये कल के कॉलेज प्रोफेसर्स हैं, कल के लेक्चरर्स हैं, कल के रिसर्चर्स यही पर है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर जनरेशन। हमें इनको देखना है कि जो हमने गलतियां की है या जो हमने झेला है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। वही है हमारा इस प्रोग्राम का मोटो कि क्लासरूम में कि एक टीचर को कैसे जाना है। पहले तो प्रिपेयर्ड जाना है, फिर मैथमेटिक्स में ये रह गया है कि वी हैव बीन एज अ टीचर वी रिमेन स्टैटिक, सिर्फ सिलेबस को पढ़ाना है। भाई अगर आज स्टूडेंट्स का मूड नहीं है पढ़ने का, लेट अस डू सम एक्टिविटी। हमारे घर में हमेशा मेरी दादी हुआ करती थी, वो एक चीज़ बोलती थी, वो उन्होंने 5th तक पढ़ा था, तो उसमें माना तला राष्ट्र कहाँ रकम बिज में से कहाँ रकम, आप कोई रकम ले लो, अपने फ्रेंड से कोई रकम ले लो, फिर हाफ डोनेट करो। तो बेसिकली जब हमने देखा ये लीनियर इक्वेशन ही थी, आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं विच सीम्स वेरी फॉरेन टू द स्टूडेंट्स, हमें उसको रिलेट करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ।
एक बार मैं कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा रहा था अपने स्टूडेंट्स को, उनको मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव जब हमें आता है, तो उन्हें कहा सर ये कॉम्यूटेटिव क्या है। अब मैंने एक प्रॉब्लम बोली उनको कि मैंने बोला कि दो बंदे हैं, उनके पास हर एक के पास 3-3 एप्पल्स है, तो टोटल कितने आ जाएंगे। उन्होंने बोला कि 6। मैंने बोला आप जस्ट 1 मिनट, मैंने बोला कि ये कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि 3 into 2 दैट 6। मैंने बोला अब अगर हम 2 into 3 करेंगे वो कहेंगे 6। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं आपके साथ मुताफिक नहीं हूँ। मैंने बोला क्यों, क्या बात है, ये तो इतना ईजी है। उन्होंने बोला जो आपने पहली 3 into 2 कहा उसमें सिर्फ 3 बंदे हैं, और दूसरी प्रॉब्लम में आपने कहा 2 into 3, अब तो 2 ही बंदे, ये कैसे सेम होगा। उसमें तो 3 बंदे हैं, इसमें 2 बंदे हैं। तो मैं वाकई खुश हो गया कि उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे इक्वल है। बेसिकली फिर हम उसको समझाया कि हमारा जो प्रोडक्ट है एंड रिजल्ट है वो है 6 एप्पल्स, वही हमें चाहिए दोनों प्रॉब्लम में। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे माहौल हमें बनाना है कि students should ask the questions. Basically, the main aim of the mathematics is to develop the scientific temper and the logical reasoning about the. जब हम honest रहेंगे as a student, as a teacher इस subject के साथ, फिर तो अल्लाह ताला benefit देगा ही देगा. Thank you for all. Thank you very much. I forget to introduce myself. I am Sarwar Bashir Mani. Currently, I am a senior lecturer and serving in the SP Higher Secondary. कौन सा बैच था आपका? 2002 and 2003. 2003. गुजार साहब मेरे से 2 साल जूनियर। हाँ, और हमेशा हमें एग्जाम्पल दी थी। जब भी हम डिपार्टमेंट गए हमें मुख्तार साहब को दिखाया जाता था कि ये पहले जिन्होंने नेट किया है क्वालिफाई। मैं सोचता था मैं कहाँ से क्वालिफाई करूँगा, मैं तो मैंने सबको नेट में डाल दिया। First of all, thank you very much, Department of Mathematics and HOD Mathematics for inviting me in this alumni and inviting me in this panel discussion. And I straight away am addressing to the dear students. You have decided to take mathematics as your subject. You have done a very nice job. Mind it, first of all. You have chosen mathematics as your subject. You are on right track, because mathematics makes you strong. It makes you face each and every problem in your life. And let's come to the main motive, main discussion, that is the mathematics phobia. Actually, I'm associated with the SCRT. We are associated with the evaluation, question paper setting, textbook framing, and we used to evaluate 20,000 question papers for 12th class couple of years ago. Right now, we are actually evaluating just 2,000 to 3,000, around 2,500 question papers of 12th class. That means graph has fallen down from 20,000 to 2,000 or 3,000. That means just 3,000 students are opting mathematics at +2 level across Valley. So there is a decline in mathematics enrollment. But I personally, this is my personal perception, I personally held 4 things responsible for this mathematical decline. First of all, I held responsible for this decline the teachers, mathematics teachers, as discussion was on regarding approach of mathematics teachers. We, as teachers, when we start any particular topic, we straight away start from the questions. रात के स्टूडेंट्स मोकर स्कर्ट पेश दिबोदो एक टीचर आया, he entered the class and started the question, solving the question paper. But this should not be the approach of a teacher. And one more approach that is negative on behalf of the teachers. Teachers क्या कहते हैं, यह एक difficult topic, ये ना ये नहीं तो समझ या एफएमएस के जो ज़्यादा पढ़ मेहनत थोड़ा difficult. This is totally a negative approach on behalf of the teachers. As Lubna madam was just saying that the topology, the second factor, one was the teachers, and the second factor is the peer, or you can say the peer pressure, the peer approach. When you entered this department, you met with your seniors, and first of all, they must be telling you that
there are 5 subjects. The most difficult subject is functional analysis. This is just an approach. This is a perception. This is what your seniors think, but it is not applied to every student. Maybe a topology may be one of the favorite subjects of the first year students or the first semester students. So don't believe in your seniors first of all, because every student has his own way. He has gone through a different way which your senior has not gone through. So जब भी आप अपनी सीनियर्स का सुनेंगे तो सुनिए, अच्छी बात है, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें जो है ना, ये आपको डिप्रेशन में डालती है. ये टोपोलॉजी में फेल होते हैं, ये टोपोलॉजी आपके समझ में नहीं है, ये फंक्शनल एनालिसिस जो है ना इसमें ये डिफिकल्ट है, मान-बनाव थ्योरम आपके समझ से बाहर है. सो ये चीजें जो है ना, इससे भी मैथमेटिक्स फोबिया पैदा होता है. The third thing which I think personally is responsible for this mathematics phobia, that is the textbook. Textbooks rather. We should once again think over the textbooks prescribed for the schools, for colleges, for even the university level. The textbooks now as after the implementation of national education policy, we talk about the competency-based learning. Competency-based, there is a paradigm shift from rote memorization, from memorization to competency-based learning. What is this competency-based learning? We are having the postgraduate teachers, postgraduates in mathematics, but they are not able to measure the area of a square length. We are having masters in physics, but they are not able to switch. In certain, I say PG physics या PG electronics आज का student, तभी कैसे कम से कम अक्सर सर्किट आसुन पता पानिस गरस मज या रेडियोस या टेलीविजनस या रिमोटस किस पर हम सर्किट आसन ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं. बट तब भी हम उस रेडियो को मैकेनिक के पास ले जाते हैं. जब हमें लैंड का जो एरिया ढूंढना होता है एज मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएट्स अशोच पे पाठवे so area land of area man. What is this? This is just the rote memorization. So after the implementation of national education policy, there is a paradigm shift. Whatever you learn, you should correlate it with your real life. Yes, there should be a competency-based learning. If you learn this statistics, if you learn this data analysis, you should know where it is applied. What are the applications? Nowadays, it is called the age of artificial intelligence and age of machine learning. And all these algorithms in machine learning and artificial intelligence and ChatGPT, etc., these are based on the mathematical algorithms. So, mathematics teachers, mathematics students at least, you should be all aware about all these things. And this will happen only the syllabus, the curriculum, the textbooks are made as per the applied part of this mathematics. And one more thing, that is this approach of the parental approach. Parental approach हम कहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा भी है मैथमेटिक्स में, मैं तब भी सोचता हूँ इसको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँगा, क्या मिलेगा इसको. कम से कम अगर मेडिकल पढ़ेगा, नीट क्वालिफाई करेगा, या फिर अगर नीट नहीं क्वालिफाई करेगा किसी नर्सिंग कोर्स में जाके एक प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट नर्सिंग होम में जॉब मिलेगा. लेकिन मैथमेटिक्स में कहाँ मिलेगा ऐसा जॉब. बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन जिसे हम कहेंगे. आज मैथमेटिक्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देख लीजिए, वेदर ऑन नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, कहीं पे भी you will find mathematics as part of your curriculum. Banking exam ho, yeah, even our this administrators will bear me out. In civil services, you have a separate general studies paper, and in that paper you have around 25% regarding all mathematics, the graphical representation, all the data analysis and all these. So, as I just said that you have decided a right path, but थोड़ा सा मेहनत करनी है, कोशिश करनी है. आप सरवर साहब अभी कह रहे थे, आपके हाथ में है
इस कौम की तकदीर। कल आप ही जो है ना इस कौम को आगे ले जाना है, इस कौम को आगे बढ़ाना है। इस कौम के एडमिनिस्ट्रेटर्स, इस कौम के प्रोफेसर्स, इस कौम के टीचर्स, इस कौम के जो ऑफिसर्स हैं, लीडर्स हैं, वो आप होंगे। लेकिन आपने क्या करना है? सिंसियर रहना है अपनी लाइफ के साथ, अपनी स्टडीज के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Thank you. Without addressing, without wasting much of time, I'll just simply take this problem as an administrative issue. No doubt, we do have problems at the grassroots level, multiple problems which need to be addressed. But I'll say कि what's our audience? 50-60 people or paper. What was the audience of Mukhtar Sahab's outreach program? I said that 2,000, 3,000 students, 5,000 students, or 5,000 people. But what is the actual quantum to whom we have to reach out? That is so large, so big. I don't think these seminars are enough. We have to become ambassadors. Not only we people have to become ambassadors, we will have to think at zonal or district level. We have to make some committees, mathematical, who will take it onto themselves, who will identify themselves to carry this mission forward, who will take it as a mission. If there is a mathematical society at the district level, they will have to reach out to the primary level teachers, to the secondary level teachers, because ultimately जो गेम है ना, it focuses on the teacher. जैसे भी कोई गुलजार साहब सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे ना, everybody was comfortable with that. You bear me out. जो भी कोई डिफिकल्ट टीचर आता है, मुझे बहुत सारे मैं नाम नहीं लूंगा, टीचर्स ने साल भर पढ़ाया, लेकिन जो मैंने खुद फिर पढ़ा तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, टीचर साल भर हमें घुमा रहा था, खुद हमने ठीक पढ़ा। लेकिन ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आते, लेकिन टीचर अच्छा मिला तो वो आपको आसमान पे चढ़ा देता है, यू फील इजी एंड यू फील कि आपको ये सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो टीचर मेन फोकस है, टीचर। लेकिन टीचर भी इतने डाइवर्स हैं, इतने ज्यादा टीचर्स हमारे स्कूल्स हैं, तो हाउ कैन यू रीच आउट टू देम? वी हैव अ मैकेनिज्म इन प्लेस आफ्टर द फॉर्म ऑफ डाइट्स, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स। ये डाइट्स को मुझे, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहा हूं, यू विल हैव टू Okay. I think without this, it is again on to Mukhtar Sahab and his team. They can devise a program that will start from the primary level. How to reach out to the teacher, how to train that teacher, and how to evaluate those teachers की किसका output क्या रहता है. And mechanism is in place. जैसे हमारे SCRT में ये भी बहुत चीजें देखती है. Then diet programs are there. उनमें अगर मैथमेटिक्स का थोड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे सरकार मानेगी नहीं जब तक हमारे पास स्टैटिस्टिकल फिगर्स नहीं होंगे. वी विल हैव टू कलेक्ट ड्रास्टिकली स्टैटिस्टिकल फिगर्स ऑफ डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ मैथमेटिक्स विज़ अदर सब्जेक्ट्स. अगर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे के साथ ऐसा ही है तो फिर हमें साइंस के मतलब हमारा और भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वी विल बिकम अ पार्ट. अगर इफ इट इज ओनली विद मैथमेटिक्स, देखिए हमें ये भी कन्विंस करना पड़ेगा सरकार को, भाई इफ इट इज ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन मैथमेटिक्स रीडिंग, अगर मैथमेटिक्स में एनरोलमेंट की ट्रेंड डिक्लाइनिंग है, दैट मींस आवर क्रिटिकल थिंकिंग विल रिड्यूस. हमारी जनरेशन, जो फ्यूचर वाली जनरेशन आएंगी, वो टेक्नोलॉजी में कमजोर होंगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कमजोर होंगी, वो रोबोटिक्स में कमजोर होंगी. दैट मींस फ्यूचर जिस चीज का है हम उससे पीछे ही जा रहे हैं. हमें सरकार को पहले कन्विंस करना होगा, उसके लिए हमें एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाना होगा, एक स्टैटिस्टिकल एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके हम कन्विंस कर सकते हैं. देखिए सरकार का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है, आई टेल यू. जैसे हम सब कहते हैं कि फीमेल फर्टिसाइड नहीं करना चाहिए, भाई बच्ची को भी जन्म देने दो, लेकिन सरकार ने जब से मेजर उठाया कि भाई यूएसजी की रिपोर्ट में कोई डॉक्टर अगर बताएगा कि इसमें सेक्स क्या है, बच्चे का प्री बर्थ सेक्स बताएगा, वो जेल में जाएगा. इट स्टॉप. इसी तरह चाइल्ड मैरिज इट हैज स्टॉप. 100 सब चीजें ऐसी हैं, जैसे सोसाइटी में कुछ लाना होता है ना सरकार को, तो फिर वो चीजें इंप्लीमेंट भी हो जाती हैं.
अगर सरकार इस चीज को बड़ी मतलब इसमें बड़ा सारा सोचा जा सकता है कि कैसे इंटरवेंशन पैदा किए जाएंगे प्राइमरी मिडिल एंड सेकेंडरी लेवल पे, ये इंटरवेंशन रख के उनको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ा जाएगा और इनको और मोर ये जो ये टीचर बता रहे थे अर्शद साहब कि टीचर ये स्टूडेंट फ्रेंडली बनना चाहिए। स्टूडेंट को लगना चाहिए कि एक्टिविटी बेस्ड इसमें इंटरेस्ट है। वो ड्राई जैसे हम बोलते हैं ड्राई मैथमेटिक्स तरीके से नहीं पढ़ाना है। और मैथमेटिक्स में जैसे मैं बोलता था बाकी सब्जेक्ट्स की तरह किसी बच्चे ने एक बार दरियाई जालिम पे मजमून नहीं पढ़ा, अब कल रूलर पे पढ़ रहा है तो समझ आएगा उसको, कल कश्मीर पे पढ़ रहा है तो समझ आएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में एक चीज उसको समझ नहीं आई, बेसिक डिवीजन कैसे होती है, स्क्वायर रूट कैसे सीखेगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, बीच में कोई चीज आप मिस नहीं कर सकते। इसलिए इसका थोड़ा सिस्टमैटिक चलना होगा और वो सिस्टमैटिक हम होल हार्टेडली नॉट आउट ओनली एट द ग्रॉस रूट लेवल, हमें ऊपर से भी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो पॉलिसीज इंटरवीन करके तभी हम कुछ ग्राउंड पे अचीव कर पाएंगे। क्योंकि हमें सोसाइटी को इस चीज से डराना होगा, भाई वी आर नॉट लीडिंग द पाथ, जैसे डेवलपमेंट की बात बाकी दुनिया कर रही है, ट्राई कर रही है, वो स्ट्राइड्स अचीव कर रहे हैं, हम उस साइड से पीछे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मैथ फोबिया का एक तरह से इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाए, क्योंकि लोगों को शायद समझ में आ गया है कि मैथमेटिक्स कोई चीज़ है। इससे अक्सर लोग जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि इसकी डिवाइडिंग जो है बाकी साइंसेज में बाकी सब्जेक्ट में कितना है, वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि लोगों की समझ में आ गया है। लेकिन अब ये है कि हमारे टीचर्स ने एक बार जब NCERT यहाँ पर शुरू किया गया तो उस हमारे जो थे वहाँ के डायरेक्टर थे, हमारे यहाँ वाइस चांसलर आ गए थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ इसको अप्लाई करना चाहेंगे, शुरू करना चाहेंगे NCERT को। आप थोड़ा स्कूलों की हालत आप मुझे बताइए, आप देखिए सभी ये करके चाहिए। तो मैं गया तो वहाँ से मैंने वहाँ देखा स्कूलों में तो टीचर्स पर बहुत ज़्यादा मतलब उसका बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं के पास थी। तो मैंने एक स्कूल में गया, मैंने कहा कि आप यहाँ स्कूल बहुत बदनाम, मैंने कहा कि यह स्कूल बड़ा बदनाम है, आपको पहले उसे आने की इजाज़त ही नहीं दी, मुझे पता नहीं आप कहाँ हमें कंट्रोल करेंगे, शर्मिंदा करेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो उसकी सर्टिफिकेट ला कर उसको दिखाई। तो उसने कहा कि सर मैं क्या कहूँगा कि हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है, ये क्या हाल है कि यहाँ आपके बहुत सारे बच्चे खराब होते हैं। तो उसने कहा कि मैं आपको एक मिसाल दूँगा, हमारे यहाँ एक टीचर है, लास्ट ईयर वो यहीं इसी स्कूल में पढ़ा है, 10th पास है, उन दिनों की बात है 80s और 70s। तो 70s में उसने कहा कि हमारे यहाँ 10वीं पास का एक स्टूडेंट है, वो पिछले साल इसी स्कूल में हमारे यहाँ स्टूडेंट था, आज वो टीचर है। उसमें यह है कि उसका कोई रिश्तेदार जो है वो मिनिस्टर है, उसने लगाया इसको। और इसके बारे में आपको बताऊं कि इससे आपको सारा पता चल रहा है कि क्या हाल है। तो लास्ट ईयर इसी का हमने यहाँ एक मजमून उर्दू मजमून लिखना था, उसको हमने कहा कि किसी एक पर मजमून लिखे। उसमें एक था गाय भी था, गाय नहीं था, उसमें बाहर था, इसी तरह वो मेरा पसंदीदा दोस्त, मेरा पसंदीदा शायर, और उसके साथ एक और टॉपिक था हवा खातून। तो उसने कहा कि इस स्टूडेंट ने इसने ये कहा कि इसने उठाया कि साहब हवा खातून मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे गाय याद है। तो उसने गाय की जगह जहाँ पर मजमून में था गाय, वहाँ हवा खातून लिखा। ये हवा खातून है, इसकी 4 टांगे। तो ये आज हमारे यही उर्दू पढ़ाता है हमारे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँ कि मिनिस्टर ने इसको लगाया यहाँ पर, तो हमारे यहाँ हमको इसको बर्दाश्त करना पड़ा। यही मायस का भी हाल हुआ है, वहाँ पर कोई हिस्ट्री का टीचर है, उसको खाते हैं मायस पढ़ाओ, तो बेचारा क्या उसको अपनी समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो इसमें हमारे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ही जिम्मेदारी रही है, क्योंकि आज तो हमारे अगर कॉलेज में देखेंगे कहीं कोई टीचर ही नहीं है, स्कूल में देखें कोई टीचर ही नहीं है। तो क्या करते हैं आप कभी आपको ये है ना वो हम कहते हैं डगरची हमारे यहाँ स्कूल टीचर कॉलेज वाले हमारे यूनिवर्सिटी वाले हमारे स्कूल में। ये तो ऐसी है, ये बहुत मतलब ये डिस्टर्ब है, कयास है हर जगह पर। और मुझे लगता है कि इसमें वो पॉजिटिव बात है कि मगर मुझे इस बात से मैं खुश हूँ कि लोगों की समझ में आ गया है
कि मैथमेटिक्स कोई चीज़ है, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट्स में बल्कि हमारे घरेलू डोमेस्टिक लाइफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है। ये सबकी समझ में आ गया है, इस पर हमें खुश होना चाहिए। लेकिन इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे वो हमारे टीचर्स के हाथ में है, हमारे अपने स्टूडेंट्स के हाथ में भी है, और खासकर हमारे पेरेंट्स के हाथ में भी है। थैंक यू। सर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सर अगर आपको लगे हम भी आपको इसमें मैं बोलने जा रहा हूँ, I'm going to consolidate, I'm going to, yes, वो मैं बताऊँ। हाँ, एक बात मैं यहाँ पूछ रहा, हमारे वहाँ 1975 में जब इंदिरा शेर रिकॉर्ड हुआ था, तो शेख अब्दुल्ला हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी में आए। आई थिंक दैट वाज द ओनली मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आए गांधी भवन में, तो उन्हें कहा मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आज तक एक वाइस चांसलर भी पैदा नहीं कर सकी। तो इसके लिए मुझे बाहर भीख मांगना पड़ता है, मुझे एक वाइस चांसलर चाहिए। तो इतने सालों तक जो हमारी यूनिवर्सिटी चलती रही, एक वाइस चांसलर भी हमारा पैदा नहीं हो सका। उसने ये भी कहा आप मुझे दिखाए, साइंस की बात छोड़ो, ये हमारे कल्चर की बात नहीं है, हमारा कल्चर है, यहाँ पर शहरशाही कम अज़ कम है। मुझे यूनिवर्सिटी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज तक कोई महजूर जैसा शायर ही दिया नहीं। तो आप मांगते हैं, सारी तनख्वाह मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। और उसने ये भी कहा कि मैं यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से इसको मैं वहाँ से मांग के लाया हूँ, मैं इसको फुल अथॉरिटी देता हूँ कि मुझे लिस्ट दे दे टीचर्स की, जो अच्छे टीचर्स हैं उनको रखें, जो नहीं है उनको मेरे हवाले करें, मैं उनको कहीं और इफ्तार करूँगा। तो दिस वाज द ओनली मोर इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। उसने ये कहा था उसको, फिर वो कहाँ तक कामयाब हुए, लेकिन उन 4-5 सालों में किसी मिनिस्टर ने यूनिवर्सिटी में फोन नहीं किया, वाइस चांसलर को कुछ नहीं कहा, नो इंटरफेयर। उसने कहा कि बिल्कुल आपके हाथ में जो आप चाहें करें, मगर मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। Thank you, sir. So I think we should consolidate it. Let me briefly tell you few things. What is the outcome of this panel discussion? First of all, as pointed out by many speakers here, what kind of strategy we have adopted. We know that problem is known to everyone. So challenges part has already been taken care of, and remedies were also being discussed here. But how I am going to consolidate, because I am not myself only, I am representing the department, I am representing the University of Kashmir so far as mathematics subject is concerned. So I am representing here. There is a mechanism which needs to be adopted at different district headquarters, as pointed out by Mr. Shah. He can help us there also. So what we can do, we can identify 5 to 6 people who are maybe alumni of the department or not necessarily the alumni, who are enthusiastic about this subject, who may have love or may be connected with this particular subject, with this concern. So that is one part of the story. So I request everyone at least help me in that. It's not possible for me to individually do all this, because you will be the organs, you for this body. So you just suggest me few people who really, because there are number of people, number of students, teachers or civil society members who are keen to have this concern that it should be uplifted. So please give me the names of 5 to 6 people from every district. We can train them, we can provide them all type of information, all types of avenues, I should say trainings, these career options, so that they can disseminate the information to every corner of the Kashmir region. That is the first thing which we can do. For that thing, we have a Kashmir Mathematical Society. I have already shared the form in the Math Test WhatsApp group. If you want to contribute in this idea, in this grave concern, I think that is the right time. We have to get united through a forum, wherein we can be helpful to the society. That's the first component. Second part is, which is for all of us, we should not propagate negativity of this subject. That is very, very unfortunate. Particularly, I have seen that the teachers themselves tell their students, no, don't take this subject. It is very unfortunate.
मेरे सामने बहुत सारे बच्चों ने कहा हम तो ठीक ठाक पढ़ते थे 8th तक 10th तक, उसके बाद हमें कहा जाता है ये मैथमेटिक्स आप मत लो। ठीक है, अगर आप प्रमोट भी मत कर लीजिए, कम से कम आप न्यूट्रल रहिए, दैट विल बी द बेनिफिट टू द सोसाइटी। नेगेटिव मत बनिए, मत बोलिएगा, उनको मत ले लो, उनको साइलेंट रहिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता, इट इज योर चॉइस। मुझे लगता है वो केवल rather than propagating negativity, it is better to remain silent. अगर आप अच्छा मशवरा भी नहीं देंगे, बुरा मशवरा मत देना। So that is my personal request to everyone. जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स को भी बोला था, ये हमारे गुलजार साहब ने भी पॉइंट आउट किया है कि अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला एवरी चाइल्ड इज डिजाइन्ड बाय अ क्रिएटर इन ए यूनिक वे। हर एक का अपना अपना ब्रेन अलग है। When we put ourselves, we will try to put ourselves in a different frame. हम दूसरों का सोच के बनना चाहते हैं, इसका मतलब हम अपने दिमाग को बंद करते हैं और वही बनना चाहते हैं जो दूसरा है। आपको तो अलग तरीके से बनाया गया है, आपका दिमाग ही अलग है, आपकी सेटिंग अलग है, आपके बायोमेट्रिक्स अलग है। जब सब कुछ अलग है तो आप कैसे सेम हो सकते हैं जो आपका सीनियर होता है? अगर उसके कई मुश्किलात थे, आपकी जिंदगी में वही मुश्किलात हो सकते हैं। So these things we need to adopt. The last one, which is very important, I discussed it yesterday with the director, School Education, and he suggested me to come up with a proposal. We are here. The good thing is that it's very positive. He said we will try to explore every possibility to get this problem eradicated from the grassroots level. That's very important. So what we have done at the university level, I am very thankful to all the colleagues, all the, I should say, whosoever is involved in this mechanism. We have drafted a proposal. In fact, I thought about this proposal 3-4 years back when I was the director of South Campus. Then I thought how to connect our students with the society. That's very, very important. Then I have submitted a proposal to the university that in our 4th semester or 3rd semester, we will just make an internship program so that we can send our students to the different schools. They can teach few chapters, 2, 3, 4 chapters. At least, instead of nowadays, the big problem is that we are here to raise problems, but simultaneously you should learn to give the solution to the problems. That is very important. We are getting number of opportunities while we raise this problem. But the good thing is, as long as you are here to give the resolution of those problems, who will come in our rescue? The point is, वहाँ पर भी हम लोग हैं, मुश्ताक साहब वहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, कोई ना कोई तो है। हमें देखना है कि हम कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉब्लम का हटावा करेंगे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये अपना हैबिट बना लीजिएगा, प्रॉब्लम छेड़ने से पहले ही उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर लीजिए, whether they will be adopted or not, that is there. So the good thing is what I had been told by the administration कि आप एक अच्छा प्रपोजल बना दीजिए। I am very thankful to सलीम साहब helped me that we had drafted a proposal. उसके बाद हमने टेक्निकलिटी जो भी इसमें प्रॉब्लम हो हमने उसको कनेक्ट किया है, हम स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं इमीडिएटली इंशाल्लाह। वो वाइस चांसलर, आई एम थैंकफुल टू द वाइस चांसलर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, शी हैड अप्रूव्ड दैट प्रपोजल। तो क्या करना है, हमने अपने बच्चों को भेजना है स्कूल, अपने जहां पर वो रहते हैं वीकेंड पर वो जाते हैं, दे कैन एंगेज 2 to 3 classes in their respective areas to teach few chapters to the students at primary level. कम से कम वो बताएंगे ना, जैसे उग्रा साहब ने बोला है कि एनीथिंग डिवाइड बाय डिवाइड, इज देयर एनी स्पेशल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द डिवीजन? वो तो ऑर्डिनरी कोई नहीं बता सकते और एक्सरसाइज पढ़ा सकते हैं। So we are sending our students as an interns to different schools. They can engage students so that we are facilitating to government. वो बोले कि हमारे पास टीचर्स ही नहीं, हम उनको बोल नहीं रहे कि टीचर्स हमें दे दो। In fact, I requested director, please give some stimulus to our students. He agreed in principle. We are submitting a proposal to the government in this regard. मुझे लगता है that is how we can explore the possibilities to resolve these issues. With these words, I am highly thankful to one and all for being part of this session. Now it is too late to go for a lunch. Thank you very much.